لیگ کے گڑھ میں موجود بلاول کا موڈ جارحانہ ہو گیا. مخالفین پر تابڑ توڑ حملے. نیشنل ایکشن پلان نون لیگ پلان بن چکا. قومی لاہے عمل کا حال سب نے دیکھ لیا. بلاول نے چودھری نثار کے خلاف نعرے لگوا دیے. مطالبات نہ مانے گئے تو تخت لاہور سے ہی گو نواز گو کے نعرے سنائی دیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی لفظی گولہ باری. بلاول بھٹو کو گمراہ کیا جا رہا ہے. انہیں عمران خان کی گالم گلوچ والی سیاست کو اپنانے کے بجائے سنجیدہ سیاست کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ کا جواب. بلاول صاحب کے بیانات ان کو مبارک ہو، لیکن حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. لوگ جمہوریت کے بارے میں حقائق جانتے ہیں. بلاول کے بیانات انہی کو مبارک ہوں، لیکن منہ سے وہ بات نکالیں جو مثبت ہو، نہ کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں. حمزہ شہباز کا رد عمل. عمران خان نیب کی کارکردگی پر پھر برس پڑے. نواز شریف پر 13 مقدمات ہیں. چیئرمین نیب گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کا سوال. کرپٹ عناصر پر ہاتھ ڈالیں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا. اقتدار ملنے پر کرپشن 90 روز میں ختم کرنے کا دعویٰ. افسوس، ملک کا وزیر اعظم خود کو بچانے کے لیے قطری شہزادے کا خط کا محتاج ہے. خط کے بعد ہو سکتا ہے دادا جان کی سونے سے بھری دیگ بھی آ جائے. خورشید شاہ کا طنز. جب قطری شہزادے کا خط آ جائے تو پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دادا جان کی ایک دیگ نکلی ہے جس میں سونے اور جواہرات تھے اور یہ چیزیں بنی. کشمیری عوام حق خود ارادت کے لیے بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہیں نہیں بھولیں گے. ہر سطح پر حمایت جاری رہے گی. وزیر اعظم نواز شریف کا دو ٹوک موقف. لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کو ہر دم تیار رہنے کی ہدایت. بھارت کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آرمی چیف نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا. بھارتی فوج کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کا خطاب. بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف آزادی کے متوالے سڑکوں پر نکل آئے. آزادی مارچ میں ہزاروں کشمیریوں کی شرکت. فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران نوجوان کو شہید کر دیا. سری نگر سے یاسین ملک گرفتار. کراچی میں اولڈ سٹی ایریا میں کیمیکل کے گودام میں آگ لگ گئی. آگ بجھانے کے دوران ایک فائر مین زخمی. میئر کراچی کا آگ لگنے کی جگہ کا دورہ. آبادی نے کیمیکل گودام کو غیر قانونی قرار دے دیا. کراچی میں صفائی مہم کا دوسرا روز. میئر کراچی کا اورنگی ٹاؤن کا دورہ. شرمندہ ہیں پہلے بھی اختیارات ملے مگر کام نہ کر سکے. اس مرتبہ سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی والوں کی زندگی بہتر بنائیں گے. وسیم اختر کا عزم. وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی کی صفائی مہم کو مثبت اقدام قرار دے دیا. ڈی ایم سیز کے پاس فنڈز ہیں تو کام کیوں نہیں کرتے؟ مراد علی شاہ کا اظہار برہمی. وزیر بلدیات کی صفائی مہم کے لیے تعاون کی یقین دہانی. لاہور میں اداکارہ قسمت بیگ کے قتل کی گتھی سلجھ گئی. فیصل آباد اور گجرانوالہ سے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاریاں کال ڈیٹا کی مدد سے کی گئیں. پشاور میں دہشت گردوں کا وار. ڈی ایس پی چمکنی کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی کوشش ناکام. 5 کلو بارود استعمال کیا گیا. پیرانو مارکیٹ میں کھڑی بس میں دھماکہ. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں 11 سال بعد قتل کا الزام جھوٹا ثابت. محمد انار کو بری کرنے کا حکم. ہائی کورٹ میں ملزم کو بری کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا. جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس.
लाहौर एयरपोर्ट पर धुंधली फिजाई ऑपरेशन को मुमकिन बनाने वाला सिस्टम नाकाम हो गया। मुतादिद परवाजें लैंड ना कर सकी। ISL के 3 सिस्टम $2.5 करोड़ में खरीदा गया था। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त गिर मौक़िफ़ के हामिल जनरल जेम्स को वज़ीर दिफा नामज़द कर दिया। जनरल जेम्स ने बयान दिया था कि उन्हें तालिबान के कत्लेआम में बहुत मजा आता है। भारतीय हठधर्मी के बावजूद चेयरमैन PCB शहरियार खान सीरीज के ख्वाहिशमंद, कहते हैं न खेलने से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। चेयरमैन ने मिसबा से मजीद 1 साल खेलने की दरखास्त कर दी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। कैंस में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के जारहाना अंदाज से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाहौर में खड़े होकर नून लीग पर खूब बरसे। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए गो निसार गो के नारे लगवा दिए और खबरदार किया कि अगर उनके 4 मुतालिबात ना माने गए तो ये नारा गो नवाज गो में तब्दील हो जाएगा। जुनूबी पंजाब के कन्वेंशन से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी जारहाने अंदाज में नजर आए। बिलावल हाउस लाहौर में खड़े होकर उन्होंने तख्ते लाहौर को भी ललकारा। हम लाहौर में हैं और मैं चाहता हूं कि तख्ते रायबंद सुन ले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गो निसार गो के नारे कहीं और से नहीं बल्कि तख्ते लाहौर से बुलंद हो रहे हैं। गो निसार गो का नारा, गो निसार गो का नारा तख्ते लाहौर से उठ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बेनजीर भुट्टो और APS के तलबा को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, मगर चौधरी निसार उनके खिलाफ लड़ने को तैयार ही नहीं। चौधरी निसार है, वो तो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कौंसिल की तश्कील का वादा किया गया था, लेकिन इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हुक्मरान मान लें कि नून लीग का एक्शन प्लान नाकाम हो गया है। अभी आपको मानना पड़ेगा, आप नाकाम हो चुके हो। नेशनल एक्शन प्लान क्या? नून लीग एक्शन प्लान, नून लीग एक्शन प्लान नाकाम एक्शन प्लान बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी बताया कि तख्ते लाहौर उनसे डरता है और ये भी बताया कि क्यों डरता है। वो डरते हैं, तख्ते वायवन डरते हैं कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी मीर मुर्तजा का भांजा भी हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि 27 दिसंबर तक अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो गो निसार गो का नारा गो नवाज गो में तब्दील हो जाएगा। अगर दिसंबर 27 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरा डिमांड नहीं माना तो मेरा नारा गो निसार गो से गो नवाज गो होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कौमी मंसूबों के लिए आने वाले बैनुल-अक़वामी सरमाया मेट्रो जैसे मंसूबों पर ज़ाया ना किया जाए। वो मेट्रो जैसे मंसूबों के खिलाफ नहीं, मगर अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान पहले दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की गरज बरस अपनी जगह, लेकिन नून लीग की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुकम्मल अमल पैरा नजर आ रही है। हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह ने इंतहाई तहम्मुल से बिलावल को जवाब दिया और मशवरा भी दिया कि उन्हें अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिलावल साहब के बयानात उनको मुबारक हो, लेकिन हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लोग जमहूरियत के बारे में हकायक जानते हैं। जमहूरियत जो तकाजा करती है मैच्योरिटी का, हमें जो मुंह से बात निकालनी चाहिए वो इसलिए निकालनी चाहिए कि मुस्बत ऑपोजिशन हो, हुकूमत जो है उसकी आंखें खोलें, ना कि हम लोगों के कपड़े उतारें, लोगों की पगड़ियां उछालें। बयान जितने मर्जी अपना जो है वो बड़े बड़े हों,
बड़े बड़े लहजे हों, सच्चाई लोग सुनना चाहते हैं, अखलाकियात की पासदारी लोग करना चाहते हैं और जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एग्रेसिवनेस का तल्लक है। मैं समझता हूँ कि शायद उनको मिसलीड किया गया है और उनको ये कहा गया है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो एक एग्रेसिव रवैया अपनाया, गाली गलोच किया, इल्ज़ाम तराशी की और शायद इसलिए वो पीपल्स पार्टी से कुछ स्पेस हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तज्ज़िया दुरुस्त नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जितना संजीदा और बैलेंस्ड जो है वो रवैया अपनाएंगे, मैं समझता हूँ उतना ही उनके लिए सियासत में जो है वो आगे बढ़ने की स्पेस जो है वो ज़्यादा होगी। बात सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की ही नहीं है, पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत भी हुकूमत पर गरजी और बरसी। खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर आजम बचे या नहीं कुछ नहीं कह सकता। कतरी शहजादे के खत के बाद पानामा केस का अखलाकी फैसला आ चुका। कमर जमान कायरा कहते हैं कि हम हर बात का जवाब देंगे लेकिन बेहूदगी का जवाब नहीं देंगे। जब कतरी शहजादे का खत आ जाए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दादा जान की एक देग निकली है जिसमें सोने और जवाहरात थे और ये चीजें बनी। लाहौर के सर्द मौसम को पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने गरमा दिया। खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, निसार खोड़ो न सिर्फ गरजे बल्कि खूब बरसे भी। खुर्शीद शाह ने कहा वजीर आजम बचेंगे या नहीं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कतरी शहजादे के खत के बाद केस का अखलाकी फैसला आ चुका। मैं समझता हूँ कोर्ट क्या केस भी दे, कोर्ट कोई फैसला भी दे, मगर कतरी शहजादे की खत के बाद किसी कोर्ट के फैसले की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा वजीर आजम पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए शहजादे के खत के मोहताज हैं। अरब शेख से एक छोटे से मुल्क कतर के एक छोटे से शहजादे से आपको पाकिस्तान के इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने आप को बचाने के लिए उसके खत की जरूरत पड़ी। कमर जमान कायरा ने भी किसी का नाम लिए बगैर कहा हम हर बात का जवाब देंगे लेकिन बेहुदगी पर कोई बात नहीं करेंगे। हमने उन्हें बात समझाई है कि हम हर तनकीद को बर्दाश्त करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। ये अलग बात है कि वल्गैरिटी का जवाब वल्गैरिटी होती है, वो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खात्मे के दावेदार हमें सिर्फ 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके और हम कोशां हैं कि हम अवाम की तवक्कुआत में भी पूरे उतरे और हैरान हैं कि जो दावे करते थे कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल कमज़ोर हो गई, वो हमें 2 दिन भी हमारी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पा। इस मौके पर निसार खोड़ो का कहना था कि मर्दमशुमारी मुल्क के मफाद में है, हमें इससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। शर्मिंदा हैं कि पहले भी इख्तियारात मिले मगर काम ना कर सके। इस बार दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची के शहरियों को जिंदगियों की बेहतर बनाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची की सबसे बड़ी पसमानदा बस्ती औरंगी का दौरा किया और अवामी मसाइल के हल का वादा किया। ताहम अवाम अब भी उम्मीद और नाउमीदी के दरमियानी कैफियत से दोचार है। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अहमद। भरपूर अज़्म और कुछ करने का इरादा लिए मेयर कराची वसीम अख्तर पहुंचे कराची की सबसे बड़ी पसमानदा बस्ती औरंगी टाउन, जहां जितना बड़ा इलाका उतने ही बड़े मसाइल मौजूद हैं। औरंगी के आवाम से मुखातिब होकर मेयर कराची ने तस्लीम किया कि माजी में भी इख्तियारात मिलते रहे मगर आवाम को कुछ डिलीवर ना कर सके। हमें अफसोस हो रहा है, हम शर्मिंदा हैं कि हमने इतने अरसे हम इलेक्ट भी होते रहे मगर हमने डिलीवर नहीं किया, हम डिलीवर नहीं कर सके। मेयर कराची ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस बार तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर कराची के मसाइल हल करेंगे। कराची ने वोट डाला है, कराची ने मुंतखब किया है, हम सब इलेक्टेड लोग सड़क पर नजर आएंगे, आपको हम काम करेंगे। औरंगी के बुजुर्गों ने वसीम अख्तर को दुआएं दी, ताहम बाद शहरी माजी के तल्ख तजर्बात को लेकर मायूस दिखाई दिए। लोग वो बातें करके चले जाते हैं लेकिन वापसी आता नहीं है, कोई जाने के बाद कोई दोबारा लौट के नहीं आता देखने के लिए कि अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि हमारा ऊपर से नीचे तक हवा ही खराब है, वो कैसे होगा?
अगर हमारे ऊपर के हुक्मरान सही होंगे तो नीचे का खुद ब खुद सही हो जाएगा। वसीम अख्तर का कहना था कि माजी के तजर्बात भूलकर आगे बढ़ना होगा। वजीर आला सिंध ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस बार सब मिलकर कराची की हालत बेहतर बनाएंगे। सैयद ज़ीशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर बल्दियात को मेयर कराची के 100 रोजा सफाई प्रोग्राम में ताउन करने की हिदायत कर दी। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो का कहना है कि कराची तरक्याती पैकेज पर रवा माह काम शुरू हो जाएगा। मेयर कराची की 100 रोजा सफाई मुहिम में सिंध हुकूमत भी मैदान में आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर बल्दियात को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। मेयर कराची के हाथ मजबूत करने के लिए वजीर आला सिंध भी मुतहर्रिक हो गए। सिंध सेक्रेटेरिएट के दौरे के मौके पर भी बल्दियाती अफसरान को मेयर का साथ देने की हिदायत की। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो ने कराची के जिली चेयरमैन के इजलास में सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए लाहे अमल तय किया। सफाई के काम में जो DMCs का काम है, स्पेशली उनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जो 100 दिन का टारगेट भी है, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह का सिंध गवर्नमेंट का इनपुट आ सकता है, किस तरह से सूरत हाल को और बेहतर कर सकते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात का मजीद कहना था कि कराची तरक्याती पैकेज पर दिसंबर में काम तेज हो जाएगा। शहर कराची में जो सफाई का काम, जिस तरह से आपको मदद चाहिए, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में रहते हुए वो हम भरपूर सिंध गवर्नमेंट मदद करेगी। जाम खान शोरो का कहना था कि जो DMCs कचरा उठाने का काम सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी। बल्दियाती एक्ट 2013 से तजावुज करते हुए जिलाई हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दे सकते। उधर मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी 100 रोजा प्रोग्राम पर वजीर आला के ताउन पर तशक्कुर का इजहार कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर गैर हाजिर अफसरान और शहर की बदहाली के खिलाफ मैदान में आ गए। उन्होंने न्यूज सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा किया और अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहम हुए। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक उनका कहना था कि वो इंजीनियर हैं, काम की बारीकी को खूब समझते हैं। एक बार फिर वजीर आला सिंध इन एक्शन नजर आए। कौन वक्त पर दफ्तर आया और कौन नहीं, ये देखने मुराद अली शाह न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। वजीर आला सिंध ने अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। बोले कि अगर 9:30 बजे तक अफसरान दफ्तर नहीं पहुंचते तो घर बैठें। इसके बाद वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची के तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ। मुराद अली शाह तरक्याती स्कीमों की सुस्त रवि पर अफसरान पर बरस पड़े। बोले कि DMCs के पास फंड मौजूद हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे, इख्तियारात का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। वजीर आला सिंध ने पुलिस के चौकस होने का जिक्र भी किया। कहने लगे कि मैं रात को अकेला दौरे पर निकला था, पुलिस ने पकड़ लिया, तारुफ कराया तो फिर जान छोड़ी। साथ ही वजीर आला ने तरक्याती कामों से मुताल्लिक याद दिलाया कि कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं खुद इंजीनियर हूँ और काम के मेयार को बेहतर समझता हूँ। कराची में सिटी कोर्ट के करीब केमिकल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। वसीम अख्तर कहते हैं कि ट्रैफिक जैम होने के बायस फायर टेंडर्स को पहुंचने में दुश्वारी पेश आई। तफसील जानेंगे सैयद ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट के करीब गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। स्वामी नारायण मंदिर के अहाते में कायम रिहायशी हिस्से के दरमियान वाक़े गोदाम में केमिकल जखीरा किया गया था। आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ताहम आग की शिद्दत में इजाफे पर मजीद 4 फायर टेंडर तलब कर लिए गए। तंग गलियों और ट्रैफिक जैम के बायस फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने और पानी के दोबारा हुसूल के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौके पर पहुंचे और इमदादी काम की निगरानी की। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने पर मेयर कराची का कहना था कि ट्रैफिक जैम के बायस फायर टेंडर्स को पहुंचने में दुश्वारी पेश आई। जो खाली हुए हैं फायर टेंडर, उनको रिफिल होने में देर हुई, वो ट्रैफिक की वजह बनी कि वापसी में बड़ी गाड़ी होती है तो यहाँ पहुँचने में टाइम लगा, 15 से 20 मिनट लगे, उसमें डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग की शिद्दत के बायस इमारत में क्रैक्स पड़ गए हैं। इमारत मखदूश हालत में है और किसी भी वक्त गिर सकती है। सैयद ज़ीशान अहमद,
आज न्यूज कराची। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों को हरदम तैयार रहने की हिदायत की। कहा कि भारत की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 10 कोर रावलपिंडी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया और जवानों और अफसरों के साथ मुलाकात की। आर्मी चीफ ने 10 कोर के जवानों के साथ वक्त गुजारा, जहां उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग, फायर बंदी के मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और उन्हें हरदम तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि जंगबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि भारतीय जारहियत मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फौज के जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सिपा सालार ने वाजे किया कि खित्ते में देरपा क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के माबैन कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फैसल रजा खान, आज न्यूज, रावलपिंडी। और अब खबर आपको देते हैं अमेरिका से। अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त गिर मौक़िफ़ के हामिल जनरल जेम्स मेट्स को काबीना में शामिल कर लिया। नामजद वज़ीर दिफा ने अफगान जंग के दौरान बयान दिया था कि उन्हें तालिबान के कत्ले आम में बहुत मजा आता है, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के नौमुंतखब सदर की जानिब से काबीना की तश्कील नौ का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा के अहम ओहदे के लिए जनरल जेम्स मैटिस को मुंतखब कर लिया। इंतखाबात में फतह के बाद ओहायो में पहले अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ट्रंप ने जनरल मैटिस की नामजदगी का ऐलान किया। हम मैट डॉग मैटिस को वजीर दिफा मुकर्रर कर रहे हैं। जनरल जेम्स मैटिस इराक और अफगान जंग में अहम जिम्मेदारियों पर तैनात रहे हैं। मैट डॉग के नाम से मशहूर अमरीकी जनरल तालिबान के हवाले से मुतनाज़ा बयान देने पर तनकीद की जद में भी आए। जनरल मैटिस सन 2013 में फौज से रिटायर हुए। ताहम अमरीकी कानून के मुताबिक वजीर दिफा बनने के लिए रिटायरमेंट और ओहदा संभालने में 7 साल का वक्फा लाजम होता है। बुलेटिन में आगे देखिए। मियां वाली की जहरीली लड़की जिसे बिच्छू डसे तो खुद मर जाए। और 11 साल कैद में गुजारने वाले को इंसाफ मिल गया। खबर में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मियावाली की 20 साल लड़की उज़्मा को सांप गुज़िश्ता 5 बरस में 45 बार डस चुके हैं, लेकिन उस पर जहर का कुछ असर नहीं होता। लेकिन अगर कोई बिच्छू या कीड़ा उज़्मा को काट ले तो वो फौरन मर जाता है। ये माजरा है क्या, देखते हैं अनवार हुसैन नकवी की रिपोर्ट में। ये है मियावाली की शागुल मोहम्मद बस्ती की रिहायशी मोहम्मद रियाज की 20 साल बेटी उज़्मा परवीन, जो गुज़िश्ता 5 सालों से सांपों का निशाना बनती चली आ रही है। इसे 45 मरतबा सांप डस चुके हैं। 5 साल कबल घास काटने के दौरान एक सांप ने इसके हाथ पर डस लिया था, जिसके बाद वालिदैन ने इसका इलाज दम के जरिए से करवा दिया था। 20 साल उज़्मा को गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 9 मरतबा सांप डस चुका है। लड़की का कहना है कि सांप को देखते ही इसका दम घुटने लगता है और अगर इसे बिच्छू काट ले तो वो खुद मर जाता है। पहले दफा मेरे को सांप लड़ा, एक मैं घा कपड़ गई हूँ, उतने मेरे को सांप लड़े। बात तो साल लंगी, साल बाद मेरे को सांप लड़ाई। उज़्मा के वालिद ने हुकूमत से इलाज में मदद की अपील की है। उधर कत्ल के इल्जाम में कैद शख्स को 11 बरस के बाद इंसाफ मिल गया। मोहम्मद अनार की अपील 5 बरस से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी और अब इस पर फैसला सुना दिया गया। इससे पहले मजहर हुसैन ने 17 साल और मजहर फारूक ने 24 साल जुर्म बेगुनाही के बाद रिहाई पाई थी। पाकिस्तान में तहकीक और तफ्तीश का कमजोर निजाम मुतादिद बेगुनाहों को गुनाहगार बना देता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मोहम्मद अनार का मुकदमा सुना और शहादतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और बरी करने के अहकामात जारी किए। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को बरी करने के लिए हाई कोर्ट में हौसला नहीं था, लेकिन हर शख्स मोहम्मद अनार नहीं होता कि सिर्फ 11 बरस बाद ही जेल से रिहाई का परवाना मिल गया। 6 अक्टूबर ही की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में कैद सहाला के मजहर हुसैन को बेगुनाह करार दिया। मजहर हुसैन ने 17 साल जेल काटी, लेकिन आजाद फिजा में सांस न ले सके।
क्योंकि अदालती फैसले से 2 बरस कबल ही मजहर हुसैन इंतकाल कर गए थे। कत्ल के इल्जाम में 24 साल से कैद मजहर फारूक को 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली। मोहम्मद अनार को ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदला और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 5 साल ज़ेर इल्तवा रही। तहम अब उसे रिहाई मिल जाएगी। महमूद खान अचकजई का कहना है कि अमन के बगैर सीपैक समेत तमाम मंसूबे बेफायदा साबित होंगे। तमाम इदारे अपने दायरे कार में रहकर काम करें। हर एक को पार्लियामेंट और वजीर आजम के मातहत होना चाहिए। खान अब्दुल समद खान अचकजई की 43वीं बरसी के मौके पर पशीन में महमूद खान अचकजई ने जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था, हमारा खित्ता खतरनाक बहरानों से गुजर रहा है, अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हमारे सारे दावे कि हम सीपैक बनाएंगे, हम यहाँ तरक्की लाएंगे, यहाँ इंसानों की खिदमत होगी, अमन के बगैर कहीं भी कोई तरक्की नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई का मजीद कहना था कि तमाम इदारे अपने दायरा कार में रहकर काम करें। हर इदारा पार्लियामेंट और वजीर आजम के मातहत होना चाहिए। आइन बालादस्त हो, आइन के तहत मुंतखब लोग मरकजी हुकूमत में सही रहनुमा हो, सूबाई हुकूमतें भी मुंतखब लोगों के रहबरी में चले। उन्होंने कहा कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी गैर आइनी जमात नहीं, किसी को गाली देने पर यकीन नहीं रखते, हर गलत बात को बर्दाश्त करने का अज़्म रखते हैं। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।